Good morning, students. I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class, we have started a new chapter that was simple interest and compound interest, and we have also discussed question number 6 of exercise 8A. Today we will be starting from question number 7. Question number 7 is saying at what percentage per annum will simple interest on rupees 6720 be 1911 in 3 years 3 months. That means principal is given, that is rupees 6720 and interest is given, that is equal to rupees 1911. Okay, time is given, that is 3 years and 3 months. 3 years 3 months means 3 multiplied by 12 plus 3, that is 39 months. Now this 39 can be converted into year so that we can get the correct solution. तो 12 से divide करेंगे, 3 4s are 12 and 3 1s are 3 and 3 3s are 9. This will be 13 upon 4 years. Now we know that rate is equal to SI multiplied by 100 upon P into T. SI का वैल्यू है 1911 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन प्रिंसिपल इज 6720 एंड टाइम इज 13 और ऊपर 4 चला जाएगा. ठीक है, 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा. नाउ वी कैन सी कि 4 1 जा 4 and 4 1 जा 4 here, 2 बचा 27, 6 जा 24 and 3 2 4 8 32 168. Now we can see कि 1911 30 से डिवाइड होगा कि नहीं कम्प्लीटली. तो वी विल सी, अभी भी देख सकते हैं 6 + 1 7 और 8 15, ये दो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएंगे. 3 5 से 15 है, 3 6 से 18. इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 से 18, 1 1 11, 3 3 से 9 and 3 7 से 20. नाउ लेट्स सी 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं. 637 डिवाइड बाय 13, 13 4 जा 52. What we'll get? We'll get 11 and 7. 39 is 117. That means this number will be completely divided by 49. Now this will give us 49 multiplied by 10 upon 56. So here we will get 49 into 10 upon 56. 7 8 is 56 and 7 7 is 49. 2 5 is 10 and 2 4 is 8. This will be 35 upon 4. मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको तो we know that 4 8 is 32. That is 8 whole 3 upon 4% will be the answer of this question number 7. ठीक है, let's move to question number 8. Question number 8 is saying that at what rate percent of simple interest will sum of money double itself in 12 years. Again you have to find the rate, but here the question is saying कि you have to सी की जो प्रिंसिपल आप जमा कर रहे हो वो कितने रेट से 12 इयर्स में डबल हो जाएगा. तो हम क्या कर लेते हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी. ठीक है, प्रिंसिपल कितना है पी, और अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू 2p. व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन इज सेइंग दैट जो प्रिंसिपल है वो 2 टाइम्स हो जा रहा है ऑफ इटसेल्फ, खुद का 2 टाइम्स. मतलब पहले अगर पी था तो बाद में अमाउंट कितना हो गया 2p. प्रिंसिपल p है, अमाउंट 2p है, तो इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2p माइनस p, दैट इज इक्वल टू p. ठीक है, नाउ टाइम इज गिवन, टाइम इज 12 इयर्स और आपको रेट फाइंड करना. तो यू नो दैट रेट इज इक्वल टू SI into 100 अपॉन P into T. ठीक है, SI कितना है, SI इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन
प्रिंसिपल तो ऑलरेडी p लेट लिया था हमने, p इंटू टाइम इज 12 ईयर्स। ठीक है, p से p एलिमिनेट हो जाएगा, आंसर विल बी 100/12 which will give us 8 whole 4/12, रिड्यूस करेंगे तो 4 1 4 4 3 12, तो आंसर विल बी 8 whole 1/3% will be the answer of this question number 8. This was question number 8. चलिए let's move to question number 9. Question number 9 is also same as question number 7 and 8, तो आप अपने आप से ट्राई कर लेंगे। Now question number 10 is saying that you have to find the principal। ठीक है, question number 10 और 11 में आपको principal find करना है, so I'll be solving question number 10 और 11 आप अपने आप से ट्राई कर लोगे। ठीक है, question number 10 is saying what sum will yield rupees 406 as simple interest in 1 year 2 months at 6 whole 1/4% per annum। That means interest आपको given है, that is 406 rupees। SI is given in the question, that is equal to rupees 406। ठीक है, time is given 1 year 2 months, time is given 1 year and 2 months। ठीक है, this will be 12 months plus 2 months, that is 14 months। 14 months को ईयर में चेंज करना हो तो 12 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 6 12, that is 7/6 years। okay, time is 7/6 years and rate of interest is 6 whole 1/4%, rate is 6 whole 1/4%, that is 6 whole 24 plus 1 25/4%। ठीक है, now you have to find principal। प्रिंसिपल का फॉर्मूला कितना होता है, हम जानते हैं कि SI इज इक्वल टू क्या होता है, PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, SI इंटू 100/R/T। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ SI। SI का वैल्यू इज 406 इंटू 100 रेट इज 25/4, मतलब 25 तो यही रहेगा और 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना गिवन है, 7/6 ईयर, तो 7 नीचे रहेगा और 6 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नाउ 25 1 एंड 25 4। ठीक है, नाउ 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 से 7 7 5 is 35 and 7 8 is 56, तो आंसर विल बी 58 multiply by 4 multiply by 4 multiply by 6, so this will give us 6 4 is 24 and 24 4 is 96, that will be 58 multiply by 96। मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर करके देख सकते हैं, 58 multiply by 96, 6 8 is 48, 8 carry 4, 6 5 30 plus 4 34, 9 8 is 72 carry 7 and 9 5 is 45 plus 7 52। ऐड करेंगे तो 8 4 plus 2 6, 3 plus 2 5 and 5। फ्रॉम हियर वी कैन से दैट जो प्रिंसिपल है वो कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 5568। ओके, so this is solution of your question number 10। similarly you can easily solve question number 11 also ना। question 11 जो है बिल्कुल सेम इसी तरीके से है, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस ये है that it is saying अमाउंट जो है वो 1748 है ना, तो अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो आपको प्रिंसिपल माइनस अमाउंट से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा और उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12 is saying a sum of money becomes 8/5 of itself in 5 years at a certain rate of simple interest, find the rate of interest। इजी क्वेश्चन है एकदम, 12 नंबर। कंडीशन इज गिवन कि कोई सम ऑफ मनी खुद का 8/5 हो जाता है 5 इयर्स में। हम क्या कर लेंगे, खुद को, मतलब लेट द प्रिंसिपल बी पी। ठीक है, प्रिंसिपल को लेट कर लिया हमने पी।
कंडीशन क्या बोल रही है कि 5 इयर्स के बाद ये जो p है वो कितने कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है 8/5p हो जाता है। और जब कोई चीज चेंज होती है तो वो अमाउंट होती है ना, कोई चीज कितने गुना हो गई तो वो अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8/5 ऑफ p, मतलब 8/5p। अमाउंट ये है, प्रिंसिपल ये है, इंटरेस्ट इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 8/5p माइनस p। सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 8p माइनस 5p अपॉन 5, दैट इज इक्वल टू 3p अपॉन 5। इंटरेस्ट कितना आ गया 3p अपॉन 5। टाइम आपको ऑलरेडी पता है 5 इयर्स, ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 5 इयर्स। रेट फाइंड करना है, फिर से रेट का फॉर्मूला यूज करें, रेट इज इक्वल टू SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन P इंटू टी, ठीक है। SI कितना है 3p अपॉन में 5 आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 100। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज ऑलरेडी p और टाइम ऑलरेडी गिवन है कितना आपको 5 इयर्स, ठीक है। तो p से p एलिमिनेट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 and 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 into 3 12। तो रेट कितना आ गया 4 into 3 that is 12%. So you can say that any sum of money can become 8/5 of itself in 5 years at 12% of rate per annum. Okay. Now moving to question number 13. Again you have to find the principal. Okay, because the question is saying the sum of money lent at 12.2% per annum will produce the same interest in 4 years as, चलिए बता देता हूँ मैं आपको, थोड़ा slightly different question है। Question number 13. Question number 13 is saying what sum of money lent at 12.1/2% per annum will produce the same interest in 4 years as 8,560 produces in 5 years at 12% per annum. क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना पैसा 12.5% पर एनम के रेट से 4 इयर्स में जो इंटरेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो उसके इक्वल होना चाहिए, किसके, जितना 8,560 प्रोड्यूस करेगा 5 इयर्स में एट 12% पर एनम। दैट मींस हम लोग जो बाद में डेटा दिया हुआ है उस डेटा का यूज करके पहले ये इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि हमें एक्चुअली इंटरेस्ट चाहिए कितना, ठीक है। तो बाद वाले केस के लिए जो प्रिंसिपल गिवन है दैट इज 8,560 rupees, 8,560. Time is given that is 5 years and rate of interest given that is 12%, ठीक है। बाद के केस के लिए ये डेटा दिया है, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही सिंपल इंटरेस्ट उधर भी काम करेगा बिकॉज हमें सिंपल इंटरेस्ट को इक्वल करना है, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल इज 8,560, rate is 12% and time is 5 years upon 100. Okay, 5 1 is 5 and 5 2 is 10, 2 1 is 2 and 2 6 is 2, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 856 into 6, तो 6 6 is 36, carry 3, 6 5 is 30 plus 3 33, carry 3 and 6 8 is 48 plus 3 51. So from here we can say that जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 5,136 रुपीज मिलेगा, ठीक है। चलिए यही इंटरेस्ट यहाँ भी काम आना है, तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। हम क्या करें, प्रिंसिपल को पी लेट कर लें, इंटरेस्ट यही काम करेगा। तो SI इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 5,136 rupees. Rate of interest is, first case में rate of interest is 12 whole 1/2%. 12 whole 1/2%, that means
25/2%, ठीक है। और टाइम फर्स्ट केस में गिवन है दैट इज 4 इयर्स, ठीक है, टाइम है 4 इयर्स। अब प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू क्या होता है, SI मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन R इंटू टी। SI कितना है 5136 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25, और 2 ऊपर चला जाएगा बिकॉज अपॉन 2 था, मल्टीप्लाई बाय टाइम इज गिवन दैट इज 4 इयर्स। 25 1 जा एंड 25 4 जा, 4 1 जा एंड 4 1 जा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 6 2 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 plus 1 7, 2 1 2 and 5 2 10, that means principal हो जाएगा 10,272 rupees. So here from here we can say that 10,272 rupees will give the same interest as given by 8,560 in 5 years at 12% per annum. Okay, this is solution of question number 13. Question number 13 और 14 बिल्कुल exactly same है, डिजिट्स चेंज हो गए हैं। इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 14 मच इजियर है 13 से, तो आप 14 क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 15 भी इजी है, अलग अलग रेट निकाल के दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। नाउ आई विल बी टेलिंग क्वेश्चन नंबर 16। Question 16 is important and I want you to just focus on the board. Question 16 is saying A lends rupees 2,500 to B and a certain sum to C at the same time at 7% per annum simple interest if after 4 years altogether receives rupees 1120 as interest from B and C, find the sum lent to C. Okay, तो वैसे तो बोल रहा है कि एक A है, there is a man called A who has given 2,500 rupees to B as a loan, और C को भी कुछ लोन दिया, उसका वैल्यू बताया नहीं गया है, और दोनों को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है चार्ज 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, और दोनों को 4 इयर्स के लिए लोन दिया है। दोनों का इंटरेस्ट जब कलेक्ट किया तो मिला के इंटरेस्ट उसने रिसीव किया 1,120 रुपीज। तो क्वेश्चन इज सेइंग कि आपको ये फाइंड करना है कि सी को कितना रुपए लोन की तरह उसने दिया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे प्रिंसिपल फॉर बी। बी के लिए क्या प्रिंसिपल होगा, जो ए ने बी को लोन दिया है, दैट इज रुपीज 2,500, ठीक है। तो बी के लिए हम अलग कैलकुलेट करेंगे और सी के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहां से क्या कर देंगे, लेट प्रिंसिपल फॉर सी इज इक्वल टू पी, ठीक है। सी को जो प्रिंसिपल दिया या लोन दिया वो हम लोग पी लेट कर ले रहे हैं। यहाँ पे टाइम है 4 इयर्स, और यहाँ पे भी टाइम जो है वो 4 इयर्स ही है। Here also रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट इज 7% पर एनम, और यहाँ पे भी जो रेट है दैट इज 7% पर एनम, ठीक है। चलिए इसका इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, इसका इंटरेस्ट अलग निकालते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट या SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, दैट विल गिव अस 2,500 इंटू 7 इंटू टाइम इज 4 इयर्स अपॉन 100। तो 25 4 100 इंटू 7 700, ठीक है। तो यहाँ से जो इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, 700 रुपीज मिला, ठीक है। यहाँ पे SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। यहाँ प्रिंसिपल ऑलरेडी P है तो P रखेंगे, इंटू रेट कितना है 7%, टाइम है 4 इयर्स अपॉन 100, 4 on the 4 425 is 100। तो SI from here will be equal to 7P अपॉन 25, ठीक है। यहाँ से जो SI निकल के आया दैट इज इक्वल टू
7p upon 25, and the question is given that the sum of both of the interest is equal to ₹1120, मतलब कि दोनों का इंटरेस्ट कंबाइन होके इज इक्वल टू है 1120 रुपीज के। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 1120, ठीक है। तो I1 कितना है 700 प्लस I2 कितना है 7p अपॉन 25, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है 1120 के इक्वल है, ठीक है। इस 700 को उधर ले जाते हैं, दिस विल बी 7p अपॉन 25 is equal to 1120 minus 700, ठीक है। when solve this we'll get 7p upon 25 is equal to 700, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मिलेगा 420 रुपीज, है ना। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p will be equal to 420 into 25 upon 7, 7 में 7 7 3 42 and 0 60. now 60 multiplied by 25 will give us 1500, ठीक है। because 25 6 होता है 150 and 10, that means answer to this will be 1500। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रिंसिपल था that was equal to rupees 1500, ठीक है। this was your question number 16. many questions, almost 9 questions are left. I'll discuss them in the next class.